वही इंटरफेसेस है। अच्छा कंसोल क्यों आएगा? क्रैश हो गया। ठीक है, R5 इंटरफेस S1/0 क्या होगा? 101.1.2। नोशन इंटरफेस S/1 नोशन IP एड्रेस 102। इंटरफेस S1/2 IP एड्रेस 103। 1/3 IP address 104 dot show IP interface 222 done. Let's go to R1. No shirt IP address 101.1.1. R2 R3 and the R4. There is some problem with the R4, so we will say stop, start. Perfect interface S/0 IP address 104.1.1. No shut. Now we don't have any kind of reachability. We have to run some kind of routing protocol or static route so that R1 can communicate to R2, 3 or 4. So the best thing I can do is to give default routes. ISP को हटा देते हैं. So I'm going to say host name hub. So this is my hub. Host name spoke 1. Host name spoke 2. Host name spoke 3. So let's give the default route, IP route. If you have anything, forward it to what? ISP. If you have anything, forward it to ISP. If you have anything, forward it to ISP. If you have anything, forward it to ISP. Now this is going to give me the reachability, so I can ping my spoke 1, I can ping my spoke 2, and I can ping my spoke 3. ये क्या था? You I ping 104.1.1. मैं तो खुद को ही पिंग नहीं कर रहा because here we have S1/1. ठीक है,
default interface and one IP address 104.1, and I have to say a default route. रुक जा 3 स्टार. Let's ping again, ping 104.1.1. हो गया. Now we have the reachability. So let's start the configuration with the hub. So DMVPN. First I have to define the interface tunnel 0. Because the hub is going to create a point to multi-point tunnel. Tunnel source and tunnel destination can be R2, R3 and R4. So I'm going to say tunnel source, tunnel mode GRE multi-point, because this is a point to multi-point tunnel. Tunnel source will be remain this thing. Tunnel source, but the tunnel destination can be this thing. Tunnel destination, tunnel destination. So this will be the टनल फ्रॉम द हब पर्सपेक्टिव. हब के हिसाब से टनल कुछ ऐसी होगी कि टनल सोर्स तो ये है, बट डेस्टिनेशन इज डेस्टिनेशन 1, डेस्टिनेशन 2 एंड डेस्टिनेशन 3. सो वी कॉल इट पॉइंट. दिस इज अ सिंगल पॉइंट टू मल्टी पॉइंट. Destination, this is the source, means single, point means single, multi points means multiple destination. Destination 1, destination 2, destination 3. So that's why on the hub we are going to say point to multi point, but on the spokes we will say point to point, point to point and point to point. So to define tunnel mode GRE multi-point, so let's say tunnel source 101.1.1, but tunnel mode is GRE line protocol. Because it is an interface, ये क्या एक interface, so it requires what? IP address. Because it is an interface, we have to define the IP. So IP address 192.168.1.1. To show history, सिर्फ मैंने बताया टनल, दिस इज द टनल इंटरफेस 0 सोर्स, इट इज अ मल्टी पॉइंट टनल प्लस द IP एड्रेस. यही बताया. आपके पर्सपेक्टिव से सोर्स आपका हमेशा क्या रहेगा? 101.1.1, which is the NBMA address of hub, which is a NBMA address. So tunnel source is 101.1.1, but I am not sure about your destinations. आपकी destination multiple हो सकते हैं. This can be destination, this can be destination, this can be destination. So that's why I said here tunnel mode GRE multi-point. Let's go here. Here I'm going to say interface tunnel 0, line protocol down, IP address 192.168.1.2. tunnel source क्या होगी? 102.1.1.1, and tunnel destination will be 101.1.1. line protocol up आना चाहिए, up. Same with spoke 2, interface tunnel 0, IP address 192.168.1.3. tunnel source क्या होगी? 103, and tunnel destination 10. इसको यहाँ लगा देते हैं. Interface tunnel 0, IP address 192.168.1.4, tunnel source and tunnel destination 10.
बस इससे ज़्यादा आपकी MGRE की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है टिल नाउ. You don't need to configure anything else that is related to MGRE. Let's start the process of NHRP. Interface tunnel 0 IP NHRP network ID 1 कुछ भी दे दो. Interface tunnel 0 IP NHRP network ID 1 IP NHRP network ID 1. NHRP has been enabled on each and every interface. अब आपके टनल पे अगर कोई भी NHRP का पैकेट आएगा ही इज गोइंग टू इंटरटेन दैट पैकेट, क्योंकि NHRP को मैंने इनेबल कर दिया. दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू इनेबल द NHRP. The next thing what I'm going to do is I have to define the roles. NHRP enable करने के बाद first step is to enable the NHRP. Step by step याद रखना, enable the NHRP. Step 2, define the rules. Whether the role is NHS or NHC. So in step 2 you are going to define the role कि आप client हो या server हो. तो NHS कौन होगा? R1. NHC R 2, 3, 4. So I'm going to say IP NHRP. यहाँ तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बताएंगे IP NHRP NHS and IP address of NHS. तो ये GRE से जाएगा तो you are going to define the GRE IP address. This is my NHS server. Debug NHRP. Same here, let's define IP NHRP NHS 1.1. जैसे आप डिफाइन करोगे वो एक अपने आप को रजिस्ट्रेशन का मैसेज भेजेगा by telling his tunnel IP plus NBMA address. टनल IP के साथ साथ क्या बताएगा वो, सॉरी ये टनल IP नहीं है, यहाँ पे है, ये रहा, दिस वन एंड दिस वन. नो सर्विस टाइम स्टैम्प्स, हम ये हटा देते हैं टाइम. And let's see this time. IP NHRP NHS is 1.1. कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन किसके पास देनी है? 1.1 के पास. So he said I received a registration request via tunnel. So this means NHRP works through GRE because tunnel में GRE चल रहा है. The size of the packet is 72. My network ID in this thing, मतलब जो पैकेट था उसमें नेटवर्क आईडी क्या थी? 1 और मेरी भी कितनी है? 1. So this means network ID is same. So let me do one thing. I'm going to note down the information. और information कहाँ होगी? Show IP NHRP. So here he is going to show you 1.4 की ग्लोबल एड्रेस क्या है? ये, क्योंकि इसने डिबग में क्या भेजा था? यही तो भेजा था. This is my this one and my NBMA address is 104.1.1.1. So that's why you are going to see here 104.1.1. तो एक डायनेमिक टनल नेगोशिएट हो चुका है और ये चीज़ मैं बता चुका हूँ. टाइमर्स एंड दिस थिंग वो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे. परफेक्ट. नाउ वी हैव टू डिफाइन व्हाट. First we have to define our private routes, private network. First we have to define private networks. तो यहाँ पे कितना चलाया था लास्ट टाइम? अच्छा 10, 20, 30, 40 ऐसे क्या था ना? ठीक है. So let's do the same. Interface loopback 1 IP address 192.168.10.1. Interface loopback 1 IP address 192.168.20.1. Here I am going to say interface loopback 1 IP address 192.168.30.1.
here I'm going to say interface loopback 1 IP address 192.168.40.1. ठीक है, done. Perfect. Now what I'm going to do is, now I have to run what? Multicasting. By default, let me tell you, we have two concepts. We have P2P GRE and MGRE. If you are going to send any kind of multicast traffic in point-to-point GRE, it is going to accept it. But in the case of MGRE, you have to define a command. In the case of point-to-point GRE, it is going to accept any kind of multicast traffic, but in the case of point-to-multipoint GRE, you have to enable the multicasting actually. So that is IP NHRP multicast. Because here he is completely aware about this thing कि where I have to send the multicast traffic. Point to point GRE है ये, point to point. From here he will send the multicast traffic. यही रिसीव करेगा, मुझे पता है कैसे, क्योंकि टनल डेस्टिनेशन में क्या लिखा है, IP 102.1.1.1. But in the case of point to multi-point, I am not sure about my destination. कोई भी destination हो सकती है. So where should I send the multicast traffic? So here I am going to say you have to learn dynamically. Dynamically कैसे learn होगा? Through NHRP. तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना. इंटरफेस टनल 0 IP NHRP मैप मल्टीकास्ट. बट अब आपको रजिस्ट्रेशन के मैसेज फिर से भेज दोगे. सो इंटरफेस टनल 0 नोशन. इस बार देखो आप, इस डिबग में क्या कोई मल्टीकास्ट से रिलेटेड कोई मैसेज आया था? कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं. देयर इज नो सच कीवर्ड ऑफ मल्टीकास्ट. राइट नाउ आई हैव टाइप दिस कमांड IP NHRP मैप. अब आपको दिखाई देगा यहाँ पे मैपिंग कि मुझे टनल के डेस्टिनेशन क्या हो गई है. तो मैंने डायनेमिकली NHRP रजिस्ट्रेशन के मैसेज से पता कर लिया कि व्हाट विल बी माय टनल डेस्टिनेशन फॉर मल्टीकास्ट. क्योंकि जब तक आपको डेस्टिनेशन नहीं पता होगी आप मल्टीकास्ट पैकेट कहाँ भेजोगे. सो फ्रॉम हियर ही हैज़ लर्न द डेस्टिनेशन ऑफ द टनल. तो अगर आपको ये कमांड चला दी, then you have to send the NHRP registration message again. नहीं तो आपका EIGRP स्टक हो जाएगा. So for each and everything, इस पे भी और इस पे भी. यहाँ पे हम क्यों नहीं चला रहे IP NHRP मैप मल्टीकास्ट? So because on the spokes we don't need to define it, because we have what? Tunnel destination. यहाँ तो मुझे पता है मल्टीकास्ट कहाँ भेजना है, but here I am not sure about what will be my multicast destination. क्योंकि मैंने क्या चलाई है, टनल मोड. इनको तो पता है आई हैव टू सेंड द मल्टीकास्ट, बट हियर दे आर नॉट अवेयर अबाउट द डेस्टिनेशन. तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप डायनेमिकली लर्न करना है मल्टीकास्ट डेस्टिनेशन. देखो ही इज लर्निंग द मल्टीकास्ट. नाउ यू कैन रन EIGRP OSPF RIP जो भी आपको चलाना हो, बिकॉज ही हैज़ लर्न डायनेमिकली द NVMe एड्रेस. यहाँ पे ज़रूरत नहीं है बिकॉज हेयर आई हैव मैनुअली स्पेसिफाइड द टनल डेस्टिनेशन. So if you know where the tunnel is going to be terminate, then you don't need to define the multicasting. So if you know that my tunnel is going to be terminate on this 101.1.1, then you don't need to define any kind of multicasting properties or multicasting command. But if you are not aware about the tunnel destination,
then you have to say dynamically learn the tunnel destination through NHRP. So that's why I said here dynamically learn the NHRP multicasting definitions. IP NHRP map multicast dynamic. Let's learn the EIGRP 1.0 और एक होगा 10.0. No auto summary. network 192.168.20.0. No auto summary. Router EIGRP tag 192.168.1.0. वन डॉट जीरो और यहाँ पे कितना होगा 40.0. नो ऑटो समथिंग. नाउ आई एम गोइंग टू सी माय EIGRP नेबरशिप शुड अप शो IP EIGRP नेबर. तीनों के साथ क्या है? लेट्स चेक द राउट. शो IP राउट EIGRP. मुझे तीनों स्पोक्स क्या आ रहे हैं? स्पोक 1, स्पोक 2 और स्पोक 3. शो IP EIGRP नेबर और ये मेरे नेबर्स हैं. यहाँ पे देखते हैं शो IP राउट EIGRP. यहाँ पे मुझे एक आ रहा है, वो आपने CCNA में पढ़ लिया होगा. किसकी वजह से? स्प्लिट होराइजन. कि मेरे को अगर इसी इंटरफेस से अपडेट आया बिकॉज इज सेंडिंग अपडेट ऑफ 192.168.20.0 राइट. इसके पास कितना है 30.0. इज गोइंग टू गिव दिस इंफॉर्मेशन टू R1. नाउ द R1 इज नॉट गोइंग टू सेंड दिस इंफॉर्मेशन सेम फ्रॉम द रिसीव्ड इंटरफेस. R3 भी तो इस इंटरफेस से कनेक्ट है. तो स्प्लिट होराइजन यही कहता है कि जिस इंटरफेस से मुझे अपडेट मिली है मैं उसी इंटरफेस पे वो अपडेट वापस नहीं दूंगा. So that's why you have to disable the split horizon. That if I received a update from the same interface, I am not going to give it back through the same interface. इसी इंटरफेस से अपडेट आई है, इस इंटरफेस से वापस नहीं दूंगा. But in this case, you have to disable the split horizon. So I am going to say config t interface tunnel 0 no IP split horizon EIGRP. नेबरशिप फ्लक्चुएट होगी, रीसिंक होगा. रीसिंक का मतलब है वो आपको राउट्स देने स्टार्ट करेगा. और अब आपके पास 10 का नेटवर्क था. नाउ यू आर गोइंग टू सी 40 + 30. स्पोक 1 के पास खुद के राउट तो होंगे ही, जो उसका कितना है 20. बाकी क्या बचा 10, 30, 40. वो कहाँ से मिल रहा है? थ्रू EIGRP. तो यू हैव टू डिसेबल द नो IP स्प्लिट होराइजन बिकॉज द प्रॉब्लम इज अगर वो राउट यहाँ से दे रहा है वो अपडेट वापस उसी इंटरफेस से नहीं देगा. सो दिस इज हाउ द स्प्लिट होराइजन. ये आपने RNS में पढ़ा होगा, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा. ठीक है. और अब मैंने डायनेमिकली राउट्स लर्न कर लिया और सारे राउट मुझे कौन दे रहा है? 192.168.1.1 मतलब मुझे हब से मिल रहे सारे राउट. सो नाउ आई एम गोइंग टू डू व्हाट? आई एम गोइंग टू इनेबल ए कैप्चर ऑन दिस इंटरफेस. and on this interface. ठीक है. मैं पिंग करना चाहता हूँ स्पोक 2 को 192.168.30.1. सो आई एम गोइंग टू से पिंग 192.168.30.1. सोर्स मेरे इंटरनल लैन से दैट इज 192.168.20.1 हो गया. द पैकेट फॉर्मेट विल बी समथिंग लाइक दिस.
ये रहा इको रिक्वेस्ट और ये रहा आपका इको रिप्लाई। आपको राउट कौन दे रहा है? ये 30 का राउट कौन दे रहा है? 1.1 because it is getting through what? Tunnel. So I have to find the NBMA address of this IP. मेरे लिए तो ये राउट कौन दे रहा है? ये. If I want to reach to this network, my next hop is what? 192.168.1.1. And to find out the NVMe address, I will use the help of NHRP. But जब आपने यहाँ पे क्या डिफाइन किया हुआ है? टनल डेस्टिनेशन, क्योंकि वाया व्हाट मिल रही है? टनल. एंड आई सेड टनल डेस्टिनेशन इज 101.1.1. So this means the global IP of 192.168.1.1 will be 101.1.1. So I'm going to create a packet with my own source IP. The destination IP 101.1.1.1. Then I'm going to define my GRE header. कुछ ऐसा दिखेगा आपका GRE header. GRE header, and then I'm going to define my source and the destination. So suppose I want to ping this 30 subnet, so source will be my यहाँ पे GRE. And then I'm going to say 192.168.20.1 to 30.1. ये पैकेट जाएगा हब के पास. यू आर द हब, यू आर द मेन डिवाइस. DMVPN में सबसे कोर क्या डिवाइस है? हब. आपके पास ये रिक्वेस्ट आई, आप क्या करोगे? आप राउट लुकअप करोगे. यस और नो? बिकॉज यू आर द डेस्टिनेशन, यू विल रिसीव द पैकेट. सबसे पहली बात, ISP आपको ही राउट देगा बिकॉज यू आर द व्हाट? डेस्टिनेशन. आप डेस्टिनेशन हो, हब क्या राउट देगा? 101. जैसे आप रिसीव करोगे आप इसको हटाओगे, GRE भी डिक्रिप्ट होगा. एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट ए राउट ऑफ 192.168.20.1 और किसके पास जाना चाहता है? 30.1. आप क्या करोगे? राउट लुकअप, शो IP राउट ऑन द हब, शो IP राउट, एंड ऑन द हब यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि 30 के लिए तो कहाँ से भेजना है? 1.3 के पास भेजना. But this is a dynamic tunnel, so I have to find out the global IP. So show IP NHRP, and the IP address of this thing is 103.1.1.1. So you have to regenerate a packet again. So you are going to say I am the source 101.1.1. The destination is 103.1.1.1. GRE, फिर जो पैकेट था वैसे का वैसे. सो 192.168.20.1. द डेस्टिनेशन इज 30.1. हम कैसे मान ले? देखो यहाँ पे 101.1.1, 103.1.1, then we have a GRE, then 20.1, 30.1. तो जो आपका पैकेट फॉर्मेट है इट विल बी समथिंग लाइक दिस. यहाँ से पैकेट बनेगा, सोर्स IP होगा 102.1.1, डेस्टिनेशन होगा 101.1.1, GRE देन 192.168.20.1 to 30.1. टनल डेस्टिनेशन हब है तो आई विल ऑलवेज फॉरवर्ड इट टू द हब. हब विल रिसीव इट, ही विल ट्राई टू डिक्रिप्ट द पैकेट. जब यहाँ तक आ जाएगा उसको पता चलेगा आई हैव टू फॉरवर्ड इट टू 30.1. लेट मी चेक माई राउटिंग टेबल. 30.1 इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस थिंग. ये तो मुझे कौन दे रहा है? टनल. और टनल में कौन सा? 192.168.1.3. 1.3 मीन्स आई हैव टू पुट द ग्लोबल IP 103.1.1.1. तो मुझे फिर से पैकेट बनाना होगा. सो आई हैव टू से हियर 101.1.1. मैं सोर्स हूँ, डेस्टिनेशन जाएगा इसके पास और ये पैकेट गया इसके पास. व्हेन इज गोइंग टू रिप्लाई ही विल बिकम व्हाट? R3 क्या बन जाएगा? सोर्स. सो सोर्स IP 103.1.1 किसने भेजा था इसके पास? R1 ने. सो 101.1.1. फिर क्या हुआ? एक GRE हेडर.
30.1 और किसको रिप्लाई करेगा? Now that packet will be forwarded to R1. R1 फिर से उस पैकेट को रिसीव करेगा because the destination is R1. As soon as he is going to decrypt it and he is going to perform the route lookup, 20.1. 20.1 is learned through 192.168.1.2 and 1.2 means so I have to regenerate the packet. ठीक है, और आपने कुछ ऐसा ही पैकेट भेजा था बट इन अ रेप्लिका वे, मिरर इमेज आपको पैकेट की मिल जाएगी. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट. सारा ट्रैफिक किससे होके जाएगा? आपसे. इवन R2 wants to communicate to R4. क्योंकि आपको सारे राउट्स किससे लर्न हो रहे हैं? हब से. 192.168.1.4. This is the problem. Even though I want to communicate directly to R4, I am not able to communicate it because all the traffic will be forwarded through the hub. Because according to the route lookup, my next hop is 1.1, 1.1, 1.1. So this was the limitation of DMVPN phase 1. Phase 1 में यही प्रॉब्लम थी कि अगर एक स्पोक को दूसरे स्पोक से बात करनी है, सारा ट्रैफिक कहाँ से जाता था? हब से. So this was the phase 1. इसी को हम कहते हैं DMVPN phase 1. And the problem with the phase 1 is all the traffic will be forwarded through the hub. Done. So this was the problem in the phase 1. Then they introduced the concept of DMVPN phase 2. क्योंकि हमारा मेन टास्क यही था कि सारा ट्रैफिक हब से क्यों के जा रहा है. अगर R2 R4 से बात करना चाहता है और R2 wants to communicate to R3, why they are forwarding to the hub? So this was our main concern. That's why we introduced the concept of DMVPN phase 2. प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि R2, R3 and R4 they are statically pointing towards the hub. सबकी टनल डेस्टिनेशन क्या थी? हब. तो यहाँ पे ट्रैफिक तो हमेशा आपके पास ही जाएगा because here I am manually specifying tunnel destination 101.1. Here I am manually specifying that the tunnel destination is what? 101.1.1. तो वो क्यों R3 या R4 के पास भेजेगा? Why is going to forward it directly? Because if I have specified that the tunnel destination is 101.1, why is going to forward that traffic to R3 or R4? कोई मतलब नहीं बनता. It will always forward it to hub. So they said okay, so let me change the concept. हर जगह चला दो point to multi point. So we are going to run the concept of point to multi-point everywhere. Because the thing is, अगर आप यहाँ पे मैनुअली पॉइंट टू पॉइंट बनाओगे तो टनल डेस्टिनेशन में कौन आ जाएगा? हब. तो चाहे आपको R3 से बात करनी हो, R4 से, किसी से भी, यू आर गोइंग टू फॉरवर्ड इट टू ऑलवेज हब. तो उन्होंने कहा हटाओ इस चीज़ को, लेट द इंट्रोड्यूस DMVPN phase 2 where you are going to run point to multi point. So source ये हो सकता है, right? The destination can be hub, the destination can be spoke 2, the destination can be spoke 3. Multi-point, I have multiple destination. क्या पता मुझे R3 से बात करनी हो तो I have to negotiate a dynamic tunnel between R2 and R3. Maybe I want to communicate from R2 to R4, so I'm going to negotiate a dynamic tunnel between R2 to R4. So point to multi-point.
So that in DMVPN phase 2, what we have to do is we don't need to change something. We just need to change interface tunnel 0, no tunnel destination, and I'm using tunnel mode GRE multi-point. No tunnel destination. No tunnel destination. यार ये तुम्हें कराया था आरएनएस में किसी ने? हाँ ऐसा कुछ, इसके बारे में कुछ पढ़ना था, मिल नहीं रहा कहीं पे भी. शट बार बार फ्लक्चुएट करेगा, इंटरफेस 0 शट शट. तो मैंने टनल को शट कर दिया अभी के लिए. अब प्रॉब्लम ये होगी, आपने बोल तो दिया टनल मोड GRE मल्टीपॉइंट, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप में बहुत तेज दिमाग था. यू सेड टनल मोड GRE मल्टी पॉइंट. अब इसको इसके सपने थोड़ा ना रहे कि मेरे को यहाँ जाके रजिस्टर होना है. पहले तो आप बता रहे थे टनल destination 101.1.1, so that's why he was sending the NHRP packet directly to R1, but now you have removed it and you just said tunnel mode GRE multipoint. So where I need to send NHRP packets? अगर आपने ये कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट करोगे, if you are going to paste this configuration, this is my configuration on one of the spokes. किसी भी स्पोक पे ये कॉन्फ़िगरेशन है, राइट? गया, बच गया, शिट. IP to enable NHRP, to define the NHS. अभी तो ये शट किया हुआ है मैंने. टनल सोर्स, the tunnel is going to originate from this thing. टनल मोड, where I need to send NHRP packet, यहीं पे भेजने, yes or no? But what is the NBMA address? क्योंकि बीच में ISP है, he is going to say I need what? NBMA address. So now this is the problem that I was facing. If I set tunnel mode GRE multipoint, I will not able to register myself to the hub, because to register to the hub I need to know the NBMA address of hub. हब का मेरे पास क्या होना चाहिए? NBMA एड्रेस, बट आई डोंट हैव इट. आई हैव इट्स टनल IP. क्या टनल IP से मैं पैकेट भेज सकता हूँ आपके पास? नो, बिकॉज आई हैव टू पुट द NBMA एड्रेस, ताकि मेरा पैकेट कौन राउट कर सके? ISP. I have to make sure ISP can route my packet, so I have to put a NBMA address. और इस कॉन्फ़िगरेशन में मुझे कहीं पे भी हब का NBMA एड्रेस नहीं पता. So now I will not able to register to the hub. तो इसके लिए उन्होंने कहा ठीक है, ऐसी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, लेट्स इंट्रोड्यूस्ड वन मोर कमांड. आपको नहीं पता चल रहा कि IP है, सो आप मैनुअली डिफाइन कर दो IP मैप प्राइवेट IP 1.1, यही है इसका, और इसकी ग्लोबल IP आप मैनुअली बता दो, so that you will able to find out this R2 या और I will say spoke will able to find out कि अगर मुझे रजिस्टर होना है इसके पास, because you said here NHS is what 192.168.1.1. अगर NHS ये है तो इसका NBMA ये है. ठीक है, आप एक चीज़ से बाहर निकले, एक प्रॉब्लम और आई, आपने उस प्रॉब्लम को फिर से क्या कर दिया? रिजॉल्व. द प्रॉब्लम वाज यू सेड दैट एवरी ट्रैफिक विल बी फॉरवर्डेड टू द हब, चाहे आपको स्पोक 1 से स्पोक 2 के पास बात करनी है, स्पोक 3 से, एवरीथिंग वाज फॉरवर्डेड थ्रू द हब. यू सेड क्या कर दो? मल्टी पॉइंट कर दो.
ठीक है, बट प्रॉब्लम ये थी अब वो रजिस्टर कैसे करेगा. सो फॉर दैट आई सेड 192.168.1.1 द ग्लोबल आईपी इज दिस. तो अब आपने एक स्टैटिकली एनबीएमए एड्रेस डिफाइन किया. जब आप करोगे शो आईपी एनएचआरपी, हुई टनल डाउन है, सो लेट्स से नो शट शो आईपी एनएचआरपी. फिर से शट कर दो क्योंकि एचआरपी अभी नहीं चलेगा. नाउ यू सेड टाइप इज व्हाट, स्टैटिक. और यहाँ पे जो वो लर्न कर रहा है शो आईपी एनएचआरपी, टाइप क्या है, थ्रू एनएचआरपी मैसेजेस. अगर आप एनएचआरपी मैसेज के थ्रू लर्न करते हो मैपिंग ऑफ टनल प्लस एनबीएमए, if you are learning through NHRP, that will be called dynamic. And if you are learning through, if you are typing it manually, static, कैसे IP NHRP map 192.168.1.1 and the global IP is 101.1.1. डन. ठीक है, सेम आई हैव टू रन ऑन ईच एंड एवरी टनल. सो IP and HRP मैप 192.168.1.1 and the global IP is this one. IP NHRP मैप 192.168.1.1 अगर आप किया है तो उसकी ग्लोबल है. Now you are going to see here debug NHRP. When you are going to no shut the interface, no shut, they are going to register themselves. हो गया शुरू registration, because we have manually defined the destination. यहाँ पे हमने मैनुअली बता दिया कि 192.168.1.1 की क्या ग्लोबल आईपी है, 101.1.1. अभी भी एचआरपी फ्लक्चुएट हो रहा. प्रॉब्लम ये है, एचआरपी की एक और प्रॉब्लम आ गई. प्रॉब्लम ये थी कि मैंने आपको बताया था अगर आप पॉइंट टू मल्टी पॉइंट डिफाइन करोगे टनल डेस्टिनेशन नहीं होती इसमें. वी डोंट हैव टनल डेस्टिनेशन. पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में क्या टनल डेस्टिनेशन डिफाइन करते हैं, नहीं. सो दिस मीन्स द मल्टीकास्टिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क. तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्या कमांड चलाई थी, आईपी एनएचआरपी मैप मल्टीकास्ट डायनेमिक. So this was the command that you were running on this thing. But क्या स्पोक पे आपने कुछ चलाई है, नहीं. So here आपको आप खुद बताओ मल्टीकास्ट की एचआरपी हेलो सिर्फ कहाँ से आएंगे. अगर आप यहाँ पे मल्टीकास्टिंग के पैकेट एक्सपेक्ट करते हो एचआरपी के, तो कौन भेज सकता है, सिर्फ R1. इस पे भी कौन भेजेगा, सिर्फ R1. और इस पे भी कौन भेजेगा, R1. IP NHRP मैप मल्टीकास्ट डायनेमिक. यहाँ पे तो मैंने मल्टीकास्ट डायनेमिक चलाया था बिकॉज ही इज गोइंग टू सेंड द मल्टीकास्ट पैकेट टू दिस वन और दिस वन. तो आपको NHRP रजिस्ट्रेशन मैसेज के थ्रू आप उसको लर्न कर लो. बट क्या आपके पास कभी NHRP रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजेगा, नो. यू आर गोइंग टू सेंड द NHRP रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, वो थोड़ा ना आपको भेजेगा रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट. सो यू डोंट नीड टू डिफाइन हेयर IP NHRP मैप मल्टीकास्ट डायनेमिक, क्योंकि वो तो तब काम करेगी जब आपको क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट. अरे NHRP रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट मिलेगी तभी तो आप डायनेमिकली उससे एक NBMA एड्रेस फाइंड आउट करोगे. बट यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट हब क्यों भेजेगा, वाई इज गोइंग टू सेंड यू NHRP रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट. आपको अपने आप को हब के पास रजिस्टर करवाना है, वो आपके पास कभी नहीं आएगा. सो हेयर यू कैन नॉट टाइप दिस कमांड IP NHRP मैप मल्टीकास्ट डायनेमिक. आपको यहाँ पे टाइप करना होगा मैनुअली IP NHRP मैप मल्टीकास्ट.
और कहाँ से आएगा, हब से। कि मुझे मल्टीकास्टिंग के पैकेट कहाँ से एक्सपेक्ट हो सकते हैं, हब से। सेम हियर, यू हैव टू से हियर IP NHRP मैप मल्टीकास्ट 101.1.1। और यहाँ पे भी आप बताओगे IP NHRP मैप मल्टीकास्ट, और कहाँ से मिलेंगे, 101. क्योंकि पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में आपको बताना पड़ेगा मल्टीकास्ट पैकेट कहाँ से आएंगे। ऑन द हब आई एम गोइंग टू डिफाइन इट थ्रू IP NHRP मैप मल्टीकास्ट डायनेमिक, एंड हियर आई एम गोइंग टू से IP NHRP मैप मल्टीकास्ट दिस थिंग। सो इफ आई एम गोइंग टू कंपेयर द कमांड्स, so let's say phase 1 spoke, phase 2 spoke। एक साइड phase 1 spoke की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, एक साइड phase 2 spoke की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इंटरफेस टनल 0, IP एड्रेस मैंने सपोज दे दिया 1.2। Then I am going to say what, IP, sorry, हाँ, tunnel source 102.1.1, tunnel destination 101.1.1, enable the NHRP, IP NHRP network IP NHRP NHS। ये है आपकी फेज 1 की कॉन्फ़िगरेशन। प्रॉब्लम ये आएगी फेज 1 में कि सारा ट्रैफिक आपका हब से होके जाएगा। यू आर गोइंग टू फॉरवर्ड ईच एंड एवरी पैकेट थ्रू द हब। सो दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फेज 2, इंटरफेस टनल 0, और NHRP इनेबल करने के लिए IP NHRP NHS, IP NHRP ये है आपकी फेज 2 की कॉन्फ़िगरेशन। तो लॉजिकली याद रखोगे तो जल्दी याद रहेगा, रट लोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि टी शूट में आप क्या याद रखोगे, कुछ भी नहीं। सो फर्स्ट यू नीड टू हैव ए IP एड्रेस, टनल का सोर्स, टनल मल्टी पॉइंट है, सो यू कैन हैव मल्टीपल डेस्टिनेशन। To enable the NHRP so that he can entertain the NHRP packets, where I have to register myself. This is the registration, that will be always the hub. IP NHRP map multicast, so from this IP I am going to receive the multicast, and from this IP I am going to send the multicast packets, and this is the NBMA address of this thing. डन। ये डिफरेंस है आपका फेज 1 और फेज 2 में। ये कमांड सेम है। एक्स्ट्रा कमांड कौन कौन सी है, दिस इज द एक्स्ट्रा कमांड,
that you have to type. This is the extra command that you have to type. So these are the extra commands that you have to type in phase 2. 1, 2, 3. The command that is removed in phase 2 is tunnel destination. phase 1 से ये कमांड हट चुकी है, phase 2 में ये कमांड यूज नहीं करते, and you have to add 3 extra command: tunnel mode GRE multipoint, map multicast और this thing. देखते हैं ये AGRP नेबरशिप अप नहीं है, सो लेट्स ट्रबल शूट दैट कॉन्फ़िगरेशन, जो सबसे अच्छा सेक्शन होता है टी शूट का. पहले देखते हैं किसके साथ क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या नहीं है. हो गया सबके साथ. डन डन. शो IP EIGRP. अब थोड़ा हब की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं. ये दो फेज 1 स्पोक था, फेज 2 स्पोक था. लेट्स टॉक अबाउट फेज 1 हब एंड फेज 2 हब. फेज 1 हब एंड फेज 2 हब. टनल 0, फिर टनल के बाद क्या देते हैं, एक IP एड्रेस. अब यहाँ पे आपको डालना है IP NHRP. फिर आपको डालना है IP NHRP मैप मल्टीकास्ट. और सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है. एक कमांड और चलेगी, नो IP स्प्लिट होराइजन. यहाँ पे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. नो IP EIGRP. जब कॉपी पेस्ट है तो मैं क्यों परेशान करूँ. एंड दिस इज द कमांड. तो आपके हब में आप ये सारी कमांड दोगे, इसकी वजह से आपको राउट नहीं मिलेंगे. सो टू अवॉइड दोज थिंग्स यू आर गोइंग टू रन दिस थिंग. मैपिंग को वो डायनेमिकली लर्न कर ले ताकि मल्टीकास्टिंग के लिए पैकेट इनेबल हो जाए, टू इनेबल द NHRP एंड दिस थिंग. लेट्स टॉक अबाउट ऑन द फेज 2 हब. 90% आपकी यही कॉन्फ़िगरेशन होगी. ये क्यों यहाँ पेस्ट कर रहा है. सबको सेम है, बस आपको यहाँ पे चलानी है एक एक्स्ट्रा कमांड, नो IP नेक्स्ट होप सेल्फ EIGRP 10. वो मैं अभी बताता हूँ आपको क्यों एक्स्ट्रा चलानी है. phase 2 configuration is equal to phase 1 configuration plus you have to run the extra command no IP next of self EIGRP 10. So this is the extra command you are going to run. देखो show IP route EIGRP. मुझे सारे राउट किससे लर्न हो रहे हैं, तो मैं सारे ट्रैफिक किसके पास भेजूंगा, हब के पास. तो बात तो वही आ गई ना घूम फिर के. जब सारे राउट ही हब से लर्न हो रहे हैं तो आई एम गोइंग टू सेंड ऑल द ट्रैफिक थ्रू द हब. दिस इज द प्रॉब्लम.
मेरे लिए तो ये सारे राउट्स किसके पास है, हब के पास. सो व्हाई शुड आई फॉरवर्ड इट टू स्पोक 1, स्पोक 2 और स्पोक 3? इफ यू आर स्पोक 1, व्हाई यू विल फॉरवर्ड दिस ट्रैफिक टू स्पोक 2 और स्पोक 3? बिकॉज यू आर लर्निंग ऑल दिस राउट वाया हब. रीज़न यही आपने पढ़ा होगा CCNA में R1, R2, R3. It has a loopback of 1.1.1. When R1 is going to give it to R2, the next stop will be what? R1. When R2 is going to forward this route to R3, the next stop will be R2. This means by default we have a command IP next stop self. कि आप जब भी किसी को राउट दोगे आप उसके लिए नेक्स्ट होप बन जाओगे. यू आर द नेक्स्ट होप. तो फॉर R3 ही इज लर्निंग 1.1.1 राउट फ्रॉम R2. So whenever the traffic will be received to forward it to 1.1.1.1, I will forward it to R2. और R2 के लिए कौन है नेक्स्ट होप? R1. और R1 इसके पास भेज देगा. सेम हेयर द प्रॉब्लम इज when R3 is giving a route of 30.0 और वो इसके पास आया, when he is going to give it to R2, he is going to say I am the next stop. आप मेरे पास वापस ये ट्रैफिक भेजना. So the next stop is 192.168.1.1. So to avoid that, I am going to say don't put next stop. क्योंकि अगर आप नेक्स्ट स्टॉप आप रहोगे तो सारा ट्रैफिक किसके पास जाएगा? हब के पास. सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी वर फेसिंग. फेस 1 में भी तो यही हो रहा था कि सारा ट्रैफिक किससे होके जा रहा था? हब से. बट हियर आई एम गोइंग टू से डोंट पुट योर नेक्स्ट होप. तो यहाँ पे जाऊँगा नो IP नेक्स्ट होप सेल्फ EIGRP 10. दिस इज द कमांड दैट आई एम गोइंग टू रन. और जैसे आप इस कमांड को रन करोगे यू आर गोइंग टू सी सबके नेक्स्ट स्टॉप चेंज हो जाएंगे. नाउ हब इज द नेक्स्ट स्टॉप ओनली फॉर हिज ओन राउट, नॉट फॉर 30, नॉट फॉर 40. अब वो अपने राउट के लिए ही अपना नेक्स्ट स्टॉप है, बाकी किसी के लिए कोई नहीं है. सो ही इज लर्निंग ए राउट 30.0 फ्रॉम 192.168.1.3. इसी से लर्न कर रहा है. ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास गई. हमने विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, विदाउट चेंजिंग नेक्स्ट स्टॉप, उसने किसको दे दी? दैट द नेक्स्ट स्टॉप फॉर दिस ट्रैफिक इज दिस वन. और यहाँ पे आपको यही इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है. दैट टू रीच टू 30 नेटवर्क 192.168.30.0 द नेक्स्ट स्टॉप इज व्हाट? 192.168.1.3. तो इस बार नेक्स्ट स्टॉप नहीं है. तो अब अगर मुझे 30 के नेटवर्क पे जाना है तो मैं किस चैनल से कम्युनिकेट करूंगा? 192.168.1.3. और अब मैं वो ट्रैफिक हब के पास नहीं भेजूंगा. यहाँ पे ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इनिशियली द प्रॉब्लम वाज ऑल द ट्रैफिक विल बी फॉरवर्डेड थ्रू द हब. सारा ट्रैफिक मेरा हब से जा रहा था. बट नाउ आई हैव चेंज द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम हैज़ बीन रिजॉल्व्ड कि अगर मुझे 30 के पास जाना है तो नेक्स्ट स्टॉप होगा 192.168.1.3. 40 के पास जाना है तो मुझे किसके पास भेजना होगा? 1.4. तो यहाँ पे मैं इस चीज़ के लिए हब को इन्वॉल्व नहीं कर रहा. आई एम नॉट इन्वॉल्विंग हब फॉर दिस काइंड्स ऑफ ट्रैफिक. अगर मुझे 10 के पास जाना है तो ही मैं हब के पास भेजूंगा, नहीं तो मैं डायरेक्टली 1.3 और 1.4 के. अब प्रॉब्लम ये है मुझे इनका NVMe एड्रेस नहीं पता. आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाट इज़ द NVMe एड्रेस ऑफ 1.3 या 1.4. All I know is the static mapping जो मेरे यूज़र ने करके दी थी. That for 192.168.1.1 the NVMe address is 101.1.1. So now I have to resolve the NVMe address of this tunnel IP 192.168.1.3 कि what is the NVMe address. अगर मुझे 30 के नेटवर्क के पास जाना है I have to go through what? ISP. ISP क्या मांगता है? NVMe मुझे नहीं पता किसका? 1.3 का. बट एक बंदा है जिसको पता है और वो है हमारा हब के पास सबकी इंफॉर्मेशन है. 1.3 का मतलब है 103, 1.4 का मतलब है 104.
प्रॉब्लम ये है, R2 को अगर 30 के पास जाना है, इफ R2 wants to reach to 30, he has to forward the traffic through this tunnel IP. और जब वो ट्रैफिक भेजेगा, इन बिटवीन वी हैव ISP मांगता है हमसे NBMA एड्रेस, एंड वी डोंट हैव द NBMA एड्रेस ऑफ 192.168.1.3. So this is the problem that we were facing. समझ आया आपको? ये धीरे धीरे चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी और आगे, और भी फेज़ 3 भी, अभी फेज़ 4 भी है, तो काफ़ी लंबी जर्नी अभी हमारी. हाँ, तो पता चला आप फेज़ 2 में इधर उधर हो रखे हो, तो फेज़ 3 और फेज़ 4 में फर्स्ट चल रही है. अगर आपने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, फॉर एग्जांपल आप जल्दी जल्दी में थे, आपको आग लगी हुई थी, आपने लिख दिया IP NHRP मैप 101.1.1 192.168.1.1. कुछ इसने कहा नहीं, ये थोड़ा ना कुछ कहेगा आपको कि आपने गलत कमांड टाइप किया या कुछ किया. वो तो रात को रिजल्ट आएगा वो बोलेगा, ये कुछ नहीं कहेगा. एंड नाउ योर DMVPN विल फ्लक्चुएट. सो मेक श्योर यू विल रिमेंबर. अगर आपको याददाश्त में दिक्कत है तो आप क्वेश्चन मार्क यूज कीजिए. हियर इज आस्किंग ओनली द एड्रेस, तो आप टनल IP दो 192.168.1.1. नाउ ही इज आस्किंग फॉर NBMA, तो यहाँ पे NBMA एड्रेस दो. तो यूज क्वेश्चन मार्क 101.1.1. शो रन इंटरफेस टनल 0. तो पिछली कमांड को हटा दो, नो. ठीक है, शो IP राउट EIGRP. परफेक्ट. ठीक है, अब हम नए मैसेज टाइप की बात करेंगे. अभी तक तो हम NHRP रजिस्ट्रेशन मैसेज देख रहे थे. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट NHRP रेजोल्यूशन मैसेज. Now a new message type will come, NHRP resolution message. रेजोल्यूशन मैसेज तब आप जनरेट करोगे, अब क्वेश्चन आता है कि इन विच कंडीशन आई एम गोइंग टू जनरेट NHRP रेजोल्यूशन, वेयर यू वांट टू फाइंड आउट द NBMA एड्रेस. अगर आपको किसी टनल IP का NBMA एड्रेस नहीं पता, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द NBMA एड्रेस ऑफ द टनल IP, यू आर गोइंग टू जनरेट ए NHRP रेजोल्यूशन मैसेज. अगर आपको NBMA एड्रेस फाइंड आउट करना है, जैसे इस केस में, इफ आई वांट टू कम्युनिकेट विद 30 नेटवर्क 192.168.30.0, आई हैव टू फॉरवर्ड माई ट्रैफिक टू व्हाट, दिस टनल IP 192.168.1.3. बट टू फॉरवर्ड द पैकेट आई नीड टू हैव व्हाट, NBMA चाहिए मुझे, और मेरे डेटाबेस में NBMA के नाम पे बस यही है. तो इस केस में आई हैव टू जनरेट ए रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट. देखते हैं क्या होगा. इसको मैंने स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट. फिर से कैप्चर इनेबल करते हैं, ये भी स्टॉप है. अरे ठीक है, स्टार्ट. ठीक है, एक सेकेंड, इसका है मेरे पास सॉल्यूशन. ध्यान से बिल्कुल कैप्चर लगाएंगे.
सुई में धागा डालने वाली बात आती है तो ठीक है, ये शुरू चल रहा है और ये भी कुछ चल रहा है, अब मुझे नहीं पता कौन सा क्या चल रहा है। ठीक है, नाउ यहाँ पे करते हैं हम डिबग NHRP। ठीक है, नाउ शो IP EIGRP नेबर, उसकी तो वैसे ही तबीयत खराब है। शो IP EIGRP नेबर, शो IP EIGRP नेबर। चलो देखते हैं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। शो IP NHRP रजिस्ट्रेशन है हमारे पास। शो रन इंटरफेस टनल 0। लेट्स फर्स्ट चेक द रीचेबिलिटी पिंग 101.1.1। देखा, प्रॉब्लम ये है, हमारी रीचेबिलिटी ही नहीं है। अब क्या कोई इंटरफेस डाउन कर दिया क्या मैंने? लाइन प्रोटोकॉल डाउन। डाउन R5। चलो अच्छा हुआ कॉन्फ़िगरेशन बच गई हमारी। सो इसको बस स्टॉप स्टार्ट कर लेते हैं एंड वी जस्ट नीड टू असाइन द IP एड्रेसिंग। अरे देखो, मैंने कहा था ना DMVPN में ट्रबल शूट आएगा, मैं कह ही रहा था तुमसे शुरू से। ठीक है, ये टनल सोर्स 101.1.1 एंड टनल मोड मल्टी पॉइंट to entertain IP NHRP network ID 1 IP NHRP map multicast type no IP split horizon EIGRP 10 and no IP next hop self EIGRP 10. Let's go to the spoke interface channel 0 IP address 192.168.1.2 टनल सोर्स टनल मोड GRE मल्टी पॉइंट IP NHRP NHS IP NHRP मैप मल्टीकास्ट IP NHRP मैप this to this one and IP NHRP network ID 1। इससे ज़्यादा कोई कमांड चलानी है स्पोक पे, देख लो एक बार, नहीं तो इसी को पेस्ट कर देंगे। मल्टीकास्टिंग इनेबल कर दी, मैपिंग इनेबल कर दी, नेटवर्क ID NHS सोर्स और यही है। अब हम इसको सिर्फ क्या करेंगे, कॉपी, ये तो सब में सेम होना चाहिए। सो कॉपी एंड IP एड्रेस 1.3 टनल, नहीं सोर्स चेंज होगा ना सब में, ये कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। टनल सोर्स 103.1.1 टनल मोड GRE मल्टी, और बाकी ये कॉन्फ़िगरेशन सेम है। मल्टीकास्टिंग इनेबल करनी है, मैपिंग डिफाइन करनी है टू इनेबल द NHRP एंड टू डिफाइन द NHS। सेम हेयर, इंटरफेस टनल 0 IP एड्रेस 192.168.1.4 टनल सोर्स टनल मोड and then this one, okay, done। ठीक है, now we have to run EIGRP। to enable the EIGRP we have to define the loopbacks 10.1
loop back 10.20.1. Thirty dot one, 40.1. Now we have to run the routing protocol. So router EIGRP10. Let's summarize those networks. We don't have time that much, so just summarize them. No to to check it, show IP EIGRP neighbor. थोड़ा सा zoom out कर लेते हैं. 000. Perfect. Show IP route EIGRP. Yes, we have it. And they are coming from different tunnel. Now the problem is, if I want to communicate 30 network, I don't have the mapping. So I'm going to generate a resolution request. So let's capture it to see what kind of message it will be. Start. Now I will say ping 192.168.30.1, source 192.168.20.1. Before going to ping it, let me say debug NHRP and no service timestamps. Initiate the ping. क्या कोई पैकेट ड्रॉप हुआ? नहीं. The answer is quite simple. एक मैसेज है किसका? रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट का. जैसे ही आएगा सबसे पहले वो नेटवर्क आईडी मैच करेगा. नेटवर्क आईडी 11 है. यहाँ पे 0 दिखा रहा है. नहीं ठीक है, 1 दिखा रहा है. हाँ ठीक है. नाउ यहाँ से शुरू करते हैं. NHRP रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट किसने जनरेट की? R2 ने. किसके लिए? हब के लिए. क्योंकि किसके पास भेजेगा? उसके पास एक ही इन्फॉर्मेशन है कि मेरा नेक्स्ट ऑफ सर्वर कौन है? हब. On R2 show run interface tunnel 0. For him NHS is this one. और next hop server का काम क्या है? To create a resolution request and resolution reply. इसके पास सारी मैपिंग है. ये सुनो, जर्मस को हटा भी नहीं सकता ISP को. इसी के पास सारी इंफॉर्मेशन है. तो मेरे को किसके पास भेजना है रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट? हब के पास. So because this is my what? Server. So I'm going to create a packet and I'm going to forward it to the hub कि आप मुझे एक resolution request है, and inside this I'm going to say this is my NBMA address, this is my tunnel IP, and I'm looking for the NBMA address of 192.168.1.3. ये request मैंने किसके पास भेजी? हब के पास. So from here I have created a packet. Source IP, my own interface, destination IP, the hub, because for me hub is the next hop server. Server के पास ही तो मैं resolution request भेजूँगा, and then I'm going to say GRE, and I'm going to say my tunnel IP, I'm looking for 192.168.1.3. Plus I'm going to add my information. This is me and this is my tunnel IP. And I'm going to forward this information to the hub. क्योंकि हब के पास ही सब रजिस्टर होने जाएंगे. सो आई एम गोइंग टू फॉरवर्ड माय रिक्वेस्ट टू द हब. हब के पास ही पूरा डेटाबेस है. हब इज गोइंग टू रिसीव इट, ही इज गोइंग टू डिक्रिप्ट द पैकेट. ही इज गोइंग टू फाइंड आउट, ही इज लुकिंग फॉर 192.168.1.3. वो किसके लिए फॉरवर्ड कर रहा है? 192.168.1.3. एंड इज लुकिंग फॉर दिस NBMA एड्रेस जो मेरे पास है. If I'm going to tell him the NBMA address, तो वो किसके पास डायरेक्टली रिक्वेस्ट भेज देगा? R3 के पास. बट R3 इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ रिक्वेस्ट. अब R3 को सपने थोड़ा ना कि अचानक से रिक्वेस्ट आएगी. सो रेदर देन रिप्लाइंग फॉर दिस रिक्वेस्ट, ही विल रीडायरेक्ट दिस रिक्वेस्ट टू द R3, ताकि R3 रिस्पॉन्स करे, एंड देन R3 विल रियलाइज दैट आई एम गोइंग टू फॉर्म ए डायनेमिक टनल.
ही इज नॉट रिप्लाइंग दिस रिक्वेस्ट, वो इस रिक्वेस्ट को रिप्लाई नहीं करेगा. Rather than replying, he will redirect this request to the R3. And now R3 is going to reply the request to R2 so that they will be both prepared for any kind of tunnel. क्योंकि यहाँ तो अब एक डायनेमिक टनल बनने वाला है. So to inform R3 also that we are going to form a dynamic tunnel, rather than replying by the hub reply नहीं करेगा. आप बोलेगा कि यार मैं reply तो कर दूंगा, वो टनल की रिक्वेस्ट लेके इसके पास आ जाएगा, एंड इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ टनल. तो सबसे पहले आई हैव टू इन्फॉर्म हिम दैट समबडी वांट्स टू क्रिएट अ टनल. तो इस रिक्वेस्ट को हब रिडायरेक्ट करके किसके पास दे देगा? R3 के पास. R3 रिप्लाई करेगा तो R3 को पता चल जाएगा दैट समवन इज लुकिंग फॉर माय NBMA एड्रेस, सो दिस मीन्स समवन इज गोइंग टू फॉर्म ए व्हाट? टनल. सो नाउ you are going to see on R3 एक NHRP रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट आई है. किस आईपी से? हब की आईपी से. सो नाउ द पैकेट वाज दिस थिंग. यही पैकेट आया था यहां से. नाउ व्हाट द हब डिड इज, फर्स्ट ही डिक्रिप्टेड, देन ही रियलाइज ही इज आस्किंग फॉर दिस थिंग. He's asking for this NBMA information. So NBMA. He said, I'm not going to reply because I'm not the real destination. So let me forward it to R3. So he's going to say source IP is my and the destination IP is R3. R3 will say, okay, this is the packet. Let me receive it. Decrypt करेगा. With the help of this information, he will find out who actually generate this packet. क्योंकि वो उस पैकेट के अंदर अपना क्या भेज रहा है? NBMA plus tunnel IP. देखो तो यहाँ से he will find out that this request will be originated from 102.1.1.1 and whose tunnel IP is 192.168.1.2. So in this thing he is going to send a reply. ये पैकेट आया हब से किसके पास? R3 के पास. Now R3 is going to send a resolution reply. And in this thing he is going to put its own NBMA address 103.1.1.1. And now he is going to create a new packet, source IP 103.1.1, destination IP 102.1.1. उसको वो destination कैसे पता चला? Inside the field I am putting my NBMA and tunnel IP, and then GRE, that is with NHRP, and here is going to inform him for 1.3 the NBMA address is 103.1.1.1 and that packet is forwarded to R2. और इस information की help से 102.1.1 की help से R3 ने भी अपने NHRP डेटाबेस में नोट डाउन कर लिया दिस थिंग. 1.2 का NBMA कितना है? So this is how it is going to work. So let me tell you again. So how this thing is going to work? First, he is going to create a packet and is not aware about this NBMA, so he will directly ask to what? Hub. So source IP, destination IP, and then is going to put its own information कि मेरा NBMA ये है, मेरी tunnel IP ये है, and I am looking for the IP address of 192.168.1.3. उसका NBMA क्या है? That information will be forwarded to hub. Hub will say I am not 192.168.1.3. So why should I reply? So let me create a new packet. Source IP में अपनी, destination 103. वो पैकेट वैसे का वैसे is not going to temper the packet. So 192.168.1.1 and then 192.168.1.3 and he is looking for what? NBMA. That packet will be forwarded to R3. Now R3 will find out, okay, someone is not going to maintain this thing क्योंकि ये तो decrypt कर देगा वो, but from this information he will find out that someone 102.1.1 is looking for my NBMA address. तो मैं उसको डायरेक्टली यहाँ से रिप्लाई कर देता हूँ क्योंकि मुझे क्या मिल चुका है? उसका NBMA और क्या मिल चुका है? टनल IP जो भी था. So this is how it is going to work. He is going to query to the hub. Hub will say I'm not the right person.
let me forward it to R3 and R3 directly reply to it. बट ये मैसेज एक्सचेंज होने में टाइम तो लगेगा ही, ये सो नो, तो एटलीस्ट एक पैकेट तो ड्रॉप होना चाहिए. मेरा तो एक भी पैकेट ड्रॉप नहीं हुआ. देखो ऑल द पैकेट्स विल बी सक्सेसफुली फॉरवर्डेड. अब ये कैसे हो सकता है? जैसे हम DM IPsec चलाते हैं, वी रन IPsec, सो ऑन 2 or 3 पैकेट्स विल बी ड्रॉप्ड बिकॉज मेरा नेगोशिएशन चल रहा होता है, राइट. बट नाउ हियर नन ऑफ द पैकेट इज ड्रॉप्ड, स्टिल आई एम सेंडिंग NHRP रेजोल्यूशन. वो तो पहले किसके पास जाएगी? हब के पास जाएगी, हब से स्पोक के पास जाएगी, स्पोक रिप्लाई करेगा, देन ओनली आई एम गोइंग टू क्रिएट ए डायनेमिक टनल बिटवीन R2 एंड R3. बट स्टिल माई पैकेट इज नॉट ड्रॉपिंग. द आंसर इज, इसका भी आंसर है, वो एक साथ 2 पैकेट जनरेट करता है R2. कैसे? देखो उसके पास मैपिंग नहीं है फिलहाल के लिए, तो नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट हैव एनी मैपिंग, सो व्हाट इज गोइंग टू डू इज ही इज गोइंग टू क्रिएट अ पैकेट एंड इट विल फॉरवर्ड इट टू द हब. जब तक मैपिंग नहीं है मैं किसको दूंगा? हब को दूंगा, बिकॉज हब इज माई सर्वर. वो मेरा क्या, एक सर्वर. सो माई टास्क इज टू फॉरवर्ड ऑल द पैकेट्स. जब तक मेरे पास रिप्लाई नहीं आएगा आई एम गोइंग टू फॉरवर्ड ऑल द पैकेट, रेजोल्यूशन पैकेट प्लस इको रिक्वेस्ट, ICMP इको रिक्वेस्ट पैकेट टू द. तो इस केस में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट अ पैकेट. सोर्स IP, सोर्स IP कितनी होगी? 102. डेस्टिनेशन IP हब 101.1.1. GRE सोर्स किससे पिंग कर रहे हैं? 20.1. ठीक है. सो source IP and the destination IP is 30.1. This is what? Echo request. Now that packet will be received by the hub. The hub is going to say okay, I am not the right person, so let me forward it to R3. Source कौन हो जाएगा? Hub. Destination कौन हो जाएगा? 103.1. GRE packet will not be tampered, so whatever the content inside the packet, it will be forwarded same. Echo request. यही पैकेट था कंटेंट का. इज नॉट गोइंग टू ओपन GRE हेडर बिकॉज 30.0 नेटवर्क डज नॉट बिलोंग्स टू द हब. 30 नेटवर्क किसको बिलोंग करता है? 1.3. एंड शो IP NHRP 1.3 स्टैंड्स फॉर 103.1.1.1. तो दिस पैकेट विल बी फॉरवर्डेड टू R3. रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट भी साथ के साथ आ रही है, ये पैकेट भी कम्युनिकेशन साथ के साथ हो रहा है. नाउ ही इज गोइंग टू रिप्लाई, is going to reply to the hub. जो पैकेट मिला उसी को रिप्लाई करेगा. So he will change the content and now he is going to say I am the source, the destination is the hub. hub नहीं मुझे भेजा था. source में क्या आ जाएगा? 30.1 और 20.1 and this will be what? echo reply. Now that packet will be forwarded to the hub. hub is going to say let me forward it to R2. तो वो इस पैकेट को चेंज करेगा एंड नाउ इज गोइंग टू से 101.1.1. डेस्टिनेशन कौन है? R2. GRE 30.1 और कितना है? 20.1 एंड दिस इज व्हाट? इको रिप्लाई. यही पैकेट आपने भेजा था R2 से. देखो इसको और इसको कंपेयर करो, मिरर इमेज ही है. 102 to 101 और रिप्लाई किससे आ रहा है? 101 to 102. GRE 30.1 20.1, यहाँ से था 20 to 30. इको रिक्वेस्ट, इको reply. That's why your packets are not dropping because initially that packet will be forwarded by the hub और उसके बाद those packets will be forwarded directly. अगर अब मैं देखूंगा शुरू में क्या है? 101.1.1 but now you are going to see I am communicating directly 102 103 102 to 103. तो मेरा एक भी पैकेट ड्रॉप नहीं होगा जब तक रेजोल्यूशन नहीं होगा. कौन फॉरवर्ड करेगा? हब. एज सुन एज द रेजोल्यूशन इज सक्सेसफुल नाउ आई एम गोइंग टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द स्पोक्स. अब आपको आज प्रैक्टिकल क्लास में आपको ये करना है. आपको बहुत ईजी सा टास्क है. देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज सबसे पहले बनाओ ISP. R2 R3
आईपी मैं डिफाइन नहीं करूंगा, वो आप सबको पता है, 102 103 जो भी है, इसके पीछे प्राइवेट आईपी, इसके पीछे। बट हुआ ये कि जो मेरा हेडक्वार्टर है ना, वहाँ पे मैंने एज पे ना ASA रख दिया। अब ASA तो टनल सपोर्ट नहीं करता, तो इंटरनल नेटवर्क में है मेरा R1, और इंटरनल नेटवर्क में क्या होगा, एक प्राइवेट एड्रेस रेंज। सो दिस इज 192.168.11.1, 192.168.11.2, 101.1, 101.2, 102.2, 102.1, 103.1, 1 सॉरी 2, 103.1। ठीक है, बाकी सब सेम है। 192.168 10.0 मेरा प्राइवेट एड्रेस रेंज चल रहा है, इसके नीचे /24। हियर आई एम रनिंग 192.168 20.0, एंड हियर आई एम रनिंग 192.168 30.0 /24। द टनल आईपी सेम वही है। Here the tunnel IP will be 192.168.1.1. Here the tunnel IP is 192.168.1.2, and here the tunnel IP is 192.168.1.3. So this will be my practical. You have to make sure you have to terminate your VPN on R1. हाँ, this is your hub, क्योंकि ASA पे टनल नहीं बन सकता, तो ये हब है, ये स्पोक 1 है, ये स्पोक 2 है, और हब की जो IP है वो है 192.168.11.1 11.2 है मेरे ASA की। तो आपका जो VPN है वो सीधा आएगा, या DM VPN जो भी है वो डायरेक्टली होगा ASA पे। ASA उसको कन्वर्ट करके, मतलब नेटिंग भी करनी है आपको, प्लस यू हैव टू कॉन्फ़िगर सम काइंड ऑफ ACL। तो इससे आपका नेटिंग का कंसेप्ट भी रिवाइज होगा, एंड यू आर गोइंग टू रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ एक्सेस लिस्ट। नेट भी तो करोगे यहाँ पे, यू हैव टू परफॉर्म नेट हेयर ऑल्सो। नहीं, शुभम भी तो देगा, मैं ही देने लग गया तो फिर वो क्या देगा। क्योंकि मेरा मेन कंसर्न ये है कि आप ASA से दूर ना जाओ, ASA ज़रूर टोपोलॉजी में हो, तो इससे आपकी नेटिंग रिवाइज होगी, और 8.4 एंड अबव ही यूज़ करना, डोंट यूज़ 8.0। ताज समझ आ गया ना? अरे क्योंकि यहाँ पे NBM में नहीं दे सकते ना तुम, यहाँ पे क्या दोगे? क्या सबके लिए ही करोगे ना नेट? तो यहाँ पे कोई भी, चाहे वो ये जाए, किसी के लिए भी नेट तो होगा। ठीक है, तो आपको फेज 2 समझ आया, फेज 2 का क्या स्कोप है, हाउ फेज 2 इज गोइंग टू वर्क। क्या हो चुका है यार, ये क्या बना रखा मैंने इस बार। तो आपको समझ आया कि वाई माई पैकेट्स आर नॉट ड्रॉपिंग, बिकॉज आई एम सेंडिंग NHRP रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट प्लस आई एम सेंडिंग NHRP पैकेट्स, आई एम सेंडिंग बोथ एट द सेम टाइम। NHRP रेजोल्यूशन पैकेट भी मैं साथ ही साथ जनरेट कर रहा हूँ, प्लस आई एम जनरेटिंग दीज पैकेट्स टुगेदर, सो दैट्स व्हाई माई पैकेट्स आर नॉट ड्रॉपिंग। तो यहाँ से फिर से याद दिला देता हूँ, यहाँ से क्या जाएगा, एक NHRP रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट, उसके अंदर क्या किया जाएगा, अपना NBM में, ताकि इसको पता चल जाए कि कौन VPN बनाना चाहता है। सो 102 एंड माई ओन टनल IP, प्लस आई एम गोइंग टू आस्क ए क्वेरी अबाउट 192.168.1.3। दैट पैकेट इज फॉरवर्डेड टू R1, R1 will forward it to R3. When R3 is going to reply, he is going to reply directly. Directly कैसे reply करेगा? Based on this NBMA address. यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब आप इसमें डिफरेंस फाइंड आउट करो।